तो चिल्ड्रन लास्ट लेक्चर पे हमने पढ़ा था व्हेन एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री और एडजस्टमेंट वाज इन टर्म्स ऑफ गुडविल, इट वाज इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेटेड गेन्स, लॉसेस नहीं था हमारे एग्जांपल में, इट वाज इन टर्म्स ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, इट वाज इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपने किया क्या, आपने किसी भी एसेट को चेंज नहीं किया, सिर्फ वैल्यू असेस करके एडजस्ट कर दिया। आई रिपीट चिल्ड्रन, वैल्यू असेस करके एडजस्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज द मेन थिंग। ये तो थोड़ा सा आपका पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद जब मैं आपको हाइब्रिड अप्रोच पढ़ाऊंगा चिल्ड्रन, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा इन दिस एनालिसिस टेबल what items are to be written and what items are not to be written. Got it? So everybody should open this page in their admission workbook. When adjustment is done by passing multiple entries and revised values are perfectly recorded. Ready everybody? So question is same children. Dinesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. With effect from 1st April 2020, they decide to share profits and losses equally. Most part of the question is known to everybody. So without solving it, हम लिख लेते हैं इसको. Here sacrifice would be 1/24, 1/24 children. And fraction of gain would be what? Minus 2/24. Is that much understood by all? चलिए. Then we have multiple adjustments children. Fixed assets valued at 331, provision is given, goodwill is given, value of stock reduced to 1,12,000. First and foremost, आप journal entries पास करनी स्टार्ट करेंगे so that एक journal की practice हो जाए हमारी. Ready everybody? Fixed assets valued at 331 in balance sheet it is given 280 children. It's increasing or decreasing? It's increasing. What would be the journal entry for this? Asset increase की journal entry क्या होती है चिल्ड्रन? Fixed asset account debit to revaluation. Very good, excellent answer. Long live Pandit ji and those who are answering. It's fixed assets account debit to revaluation. Please don't write revolution. नहीं तो कुछ देर में लैक्मे और कलर बार लिखने लग जाएंगे लोग. It is how much children? 51,000. Though it was not the requirement of the question, but एक revision हो जाएगा आपको automatically. Provision है 5% debtors का children. Here debtors are going down or going up children? Provision create किया आपने. Debtors are reducing or increasing? Debtors are increasing. Provision create कर रहे हैं. 11th क्लास में सो रहे थे लोग. क्या हो रहा है debtors का? Reduce कर रहे हैं. Loss हो रहा है. What will be the journal entry for this children? Revaluation account debit to provision for doubtful debts. What is 5% of 60,000? The answer is 3,000. Goodwill के साथ आपको क्या करना है? Everybody knows. The partner who gains will compensate to the partner who sacrifices. So children, Suresh's capital account debit to Dinesh's capital account to Ramesh's capital account. It was 17,500 if I'm not wrong. Deliberately I've taken the same question so that difference in understanding should be dealt very clearly. So people understood how to adjust goodwill. अब आपका प्रश्न मेरे से ये होगा, सर here why did you took only goodwill? आपने revaluation profit या reserve को क्यों नहीं लिया? Because question में this sentence was not mentioned which said it was decided that value of assets and liabilities shall remain unaltered. Had this been written, तो हम सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे एडजस्टमेंट करते, किसी भी एसेट और लाइबिलिटी को चेंज ना करते, एज वी डिड हेयर इन दिस केस. तो उस लाइन का लिखा होना सबसे जरूरी है. इज दैट क्लियर? चलिए, वही केस को डिफरेंशिएट कर देता है. ये तो सेम जैसे एडमिशन पढ़ा था, आपको लग रहा है वही पढ़ रहे हैं. स्टॉक चिल्ड्रन 112 हो गया 120 से. व्हाट कुड बी द जर्नल एंट्री? It's a revaluation account debit to stock. So children, value is 8,000. Everybody did this? Yes. चलिए कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस. सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है चिल्ड्रन. Here it is debit and here it is again debit.
सो नेट इफेक्ट आपका क्रेडिट आ रहा है बच्चों 51,000 एंड डेबिट इज 11, तो नेट इफेक्ट आपका क्या आएगा? इट इज 40,000 रुपी कॉल्ड एज प्रॉफिट। सबको आई होप सो प्रॉफिट की जर्नल एंट्री पता है रिवैल्यूएशन पे? इट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल टू सुरेश। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा? सब कुछ भूल जाइए, ये बताइए एडमिशन और रिटायरमेंट में हाउ वी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन? ओपीएसआर, यहाँ पे भाई ओपीएसआर चलेगा 3:3:2, दैट इज 3/10, 3/10 एंड 2/10, 40,000 upon 10, oh sorry 3/8, 3/8 and 2/8, 40,000 upon 8 children, 5 का फैक्टर आएगा, it is 15,000, 15,000 and 10,000, 40,000 upon 8, 3 3 6 और 2 8, तो 3/8, 3/8, 2/8, 40,000 upon 8 is 5, 5 3s are 15, 5 3s are 15 and 5 2s are 10। झटपट कर लीजिए इसको और रिवैल्यूएशन का लेजर बना लीजिए सुपर क्विकली चिल्ड्रन। Let's check children. On the credit side, we'll be putting by fixed assets value is 51,000. Debit side, we'll be putting to provision for doubtful debts. How much? 3,000. And then we'll be putting to stock. How much? 8,000. Now debit side is short by what children? 40,000. So we'll be putting here profit to Dinesh's capital account. Ramesh nahi hai, Ramesh's capital account to Suresh's capital account. The value is 15,000, 15,000 and 10,000. Now children, here working notes were not required because we had only goodwill to adjust. तो इसलिए यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। एल्स अगर आप लिखना चाहते तो आप लिखते यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म। शायद ये वैल्यू गलत है क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ बच्चों ये गलत है, गुडविल वाज 90,000 आई सपोज ना। हाँ यस चिल्ड्रन, दिस वैल्यू हैड अ प्रॉब्लम, जरा ठीक करिए, गलती से दूसरे क्वेश्चन का रेफरेंस ले लिया। गुडविल वाज 90 चिल्ड्रन, ये 8750 नहीं आएगा, it is 3750, 3750 and here it is 7500। गुडविल की वैल्यू जो है 90 है, वो एक पुराना क्वेश्चन था जहां पे हमने वैल्यू ले ली थी, तो आई वाज फीलिंग लाइक कि सेम आएगा, ठीक है। 90,000 रुपी गुडविल आएगी ना। 14 + 17 is 31, 31 + 20 51, 51 + 22 is 73, 73 + 27 is 1 lakh upon 5 into 4.5, 90,000 गुडविल आएगी। और 90,000 को जब आप फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस से डिवाइड करेंगे बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट, तो आपका आंसर 3750, 3750 एंड 7500 आएगा। सो प्लीज एडिट द वैल्यू इन दिस एंट्री चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ 87 राइट 37, 17,500 की जगह सिर्फ 75, करेक्ट। चलिए कैपिटल अकाउंट जैसे एडमिशन में बनाते थे चिल्ड्रन, what we used to write first and foremost in capital account? By balance brought down. The capitals were 1,80,000 and 70. So we'll put here 1 lakh, here it is 80 and here it is 70. Check out the journal entries children. First entry fixed assets to revaluation followed by revaluation to PFDD. Do these entries have any relevance with capital accounts? They won't be posted. SS capital to D2R, is this relevant children? So how we'll post? To D's capital account, to R's capital account. 3750, 3750. And here we'll be putting by SS capital account in the column of D 3750 and in the column of R 3750. Done this?
Everybody understood how the entry is to be done? Then children, आपके पास profit की entry थी revaluation to D's capital, to R's capital, to S's capital. How could we post this? By revaluation account. The value is 15,000, 15 and 10. So you must be feeling as you are doing the question on admission of a partner or retirement of a partner. Got it? तो बस जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था वही नया था, और प्लस इसके बाद जो भी मैं आपको हाइब्रिड अप्रोच बताऊंगा दैट इज न्यू. उससे ये क्लियर हो जाएगा कि टेबल में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा. जो एक नोट कल बताया था ना कि टेबल के अंदर वो चीजें आएंगी जिनकी वैल्यू डिस्टर्ब नहीं करनी. तो आप मान लीजिए दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा है, वो कह रहे हैं कि जो फर्नीचर है इसको आधा आधा नहीं तोड़ेंगे, बट घर के बीच में दीवार खड़ी करेंगे. तो घर के बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी और फर्नीचर की वैल्यू का पैसे में लेन देन हो जाएगा. सुनाई पड़ा मैंने क्या बोला? पक्का? तो जिनकी वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना सिर्फ वो टेबल के अंदर जाते हैं. क्लैरिफाई हो जाएगा हाइब्रिड अप्रोच से, नॉट टू वरी. बस और तो कुछ है नहीं यहाँ पे. लेट्स बैलेंस इट. सो 1,18,750. Here it is children 98,750 and 80,000 में 7500 माइनस हो गया, तो इट इज चिल्ड्रन 82,500. And by balance brought down, we'll be putting those same values. 118,750. Then it is children 98,750. And then it is 82,500. So the value will be 72,500. Oh, sorry. 72 लिखना था, गलती से 82 स्पेल हो गया. 70 plus 10, 80 minus this. समझ गए सब लोग? बैलेंस शीट चिल्ड्रन न्यू वैल्यूज के साथ बनेगी. ओ हे भगवान, क्या हो रहा है? गड़बड़ हो गया बच्चों, गड़बड़. जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया. रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना भूल ही गए. क्यों नहीं होगा? कभी कभी होता नहीं कि चटनी बनी रहती है बट फ्रिज के अंदर रखी रहती है, खाने के बाद याद आता है, तो वैसा ही हो गया. चलिए, राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व. चलिए, एक क्वेश्चन की तरह काम करेगा. कल को आप भी जब क्वेश्चन करेंगे आपको याद रहेगा सर से गलती हुई तो हमसे भी हो सकती है. 80,000 का जनरल रिजर्व है. चलो, आप बोले थे जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. नहीं यहाँ पे नहीं बोला था मैंने कल बोला था कि मैं पार्टी दूंगा. आज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी दूंगा, आज घर में खाना खाना है. आप कभी नहीं बोलते पार्टी देंगे. चलिए, लिख दिया. तो यहाँ पे थोड़ा बोला है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. टू बैलेंस कैरेट डाउन. व्हाट वाज कमिंग फॉर डी अर्लियर चिल्ड्रन? 118 ना, तो अब हो जाएगा 148,750. What was earlier coming for R children? 98 में 30 और जोड़ दीजिए. 98,750 आ रहा था ना, 30 और जोड़ दीजिए. 128,750. And what was coming for S? 72,500. तो अब हो जाएगा 92,500. Got it? चलिए, डन चलन. अब सही हो गया. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 148,750, 128,750 and 92,500. Understood? In capitals को with new values in the balance sheet. Do it quickly. अब रिजर्व बच्चों बढ़ गया है, क्या न्यू बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. गॉट इट क्लियर? तो कल वाली और इस वाली अप्रोच में डिफरेंस समझ में आ गया, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और जो ये पढ़ रहे हैं. चलिए, बैलेंस शीट बनाइए फास्ट. Asset side children, cash balance is how much? 40,000. Then we have what?
Bill receivable, how much? 50,000. Then we have debtors. It is 60,000 minus 3,000. You can directly write 57. Then stock, how much? 1,12,000. Then fixed assets, how much? 3,31,000. That's it. Here we have on the liability side, first and foremost item, creditors. There was no change. 1,50,000. And then we have partner's loan. Whose loan was this? Dinesh's loan account. How much? 40,000. Then आप एग्जाम में मोबाइल फोन लेके जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए? एग्जाम में मोबाइल से चेक करेंगे? औकात है मोबाइल ले जाने की एग्जाम में? तो फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? अरे तो एग्जाम में लेके जाएंगे तो इंसान को हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ऐसे जिंदगी भर मांग के खाना खा लेते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं, फिर मर जाते हैं क्योंकि कोई देने वाला होता नहीं है। तो उसी एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग में तभी फेल होते हैं और पास नहीं हो पाते हैं। चलिए, नाली के एनवायरनमेंट की पैदावार है इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। अगला लोन किसका था? रमेश का लोन था। कहते ना सुअर नाली में क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसको कीचड़ में ही अच्छा लगता है, बाहर बीमार पड़ जाता है। तो बच्चा घर में होमवर्क क्यों कर लेता है? क्योंकि कैलकुलेटर रहता है, एग्जाम में निपट जाता है। कितना है रमेश का लोन? 30,000। उसके बाद क्या था हमारे पास? जनरल रिजर्व तो बढ़ गया। इट्स दिनेश कैपिटल 1,48,750। इट इज रमेश कैपिटल कितना था? 1,28,750 and Suresh capital how much? 92,500. Anything else we can take from old balance sheet? No, not at all. Reserve तो बढ़ गया. That's it. तो बस दोनों साइड का टोटल कर लें झटपट. What's the total would be coming, children? 5,90,000. चलिए, समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी की? चलिए, अब आती है बच्चों हाइब्रिड अप्रोच, जिससे आपको ये समझ में आएगा that the table which we used to draw as working note, children, where we used to calculate what? Base value for adjustment. ये जितने आइटम्स इसके अंदर आए हैं, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? The above statement will constitute only those items which are very clearly instructed in the question that इनकी वैल्यूज को आप ऑल्टर नहीं करेंगे। I repeat children, इनकी वैल्यूज को आप ऑल्टर नहीं करेंगे। खोपड़े में बात गई? तो ये क्वेश्चन आपको बताएगा किसे ऑल्टर करना है और किसे ऑल्टर नहीं करना। जिससे ऑल्टर करना है वो यहां नहीं आएगा, जिससे ऑल्टर नहीं करना वो यहां आ जाएगा। गॉट इट? हाइब्रिड अप्रोच के थ्रू मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज, सब कुछ सेम है चिल्ड्रन। बस यहां पे क्या लिखा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द चेंज अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिजर्व रिमेन्स अनऑल्टर्ड। तो बच्चों ये जो आपकी स्टेटमेंट है, हेयर यू विल बी पुटिंग ओनली टू थिंग्स। वन इज गुडविल ऑफ द फर्म, जो कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आएगा? 90,000. And thereafter, children, I repeat, thereafter you will be putting what is called as general reserve. What is the value of reserve in balance sheet? 80,000. That's it. Have I written revaluation profit or loss here, children? Answer? No. So this is नहीं, पिछली बार तो हमने रिजर्व भी नहीं लिखा था ना, पिछली बार तो रिजर्व भी नहीं लिखा था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गुडविल और रिजर्व इन्हें ऑल्टर नहीं करना, तो ये वैल्यू के थ्रू एडजस्ट होगा। तो कहने का मतलब भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, घर का बंटवारा हुआ दीवार खींच के, समझ में गया? बट फर्नीचर का बंटवारा आधा आधा फर्नीचर काट के नहीं हुआ है, सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे हो गया। खोपड़े में बात गई? पहले किचन में 5,000 रुपए के बर्तन रखे थे, अब बर्तन आधे आधे काटे नहीं गए, आधी प्लेट तेरी आधी प्लेट मेरी, स्पून आधा तू ले ले आधा मैं ले लूं,
एक तो बेचारा घी निकाल लेगा, दूसरा सिर्फ इंडिकेटर की तरह यूज करेगा उसको। व्हाट इट क्लियर? तो रसोई के बर्तन 5,000 के थे, आधे तेरे आधे मेरे, तो कुकर को आधा कर लें, किसी काम का नहीं होगा। व्हाट इट क्लियर? नहीं, कुकर एक ही था, दो थे ही नहीं, या दो थे भी तो एक 10 लीटर का एक 2 लीटर का, तो दोनों को आधा करना बेकार है। तो 5,000 के बर्तन में 2,500 के मेरे, 2,500 के तेरे, ये वैल्यू एडजस्टमेंट होगा। तो वही चीज यहाँ पे चल रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप ऑल्टर करेंगे, सिर्फ किन दो को नहीं टच करेंगे? गुडविल एंड रिजर्व। तो गुडविल और रिजर्व इसके अंदर आ जाएंगे। एल्स बाकी आपने जैसा रिवैल्यूएशन बनाया था चिल्ड्रन, एग्जैक्टली वैसा ही रिवैल्यूएशन बनेगा। अब समझ में आया इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, व्हाट विल गो एंड व्हाट वोंट गो। व्हाट इट क्लियर? तो कल तक क्या कर रहे थे? सब स्टेटमेंट के अंदर था। अब हमने केस 2 में क्या किया? स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ गुडविल को लिखा, बाकी रियल अकाउंटिंग जैसे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड गेन लॉसेस की रिवैल्यूएशन की होती थी, वी डिड इट लाइक दैट ओनली। बट इन हाइब्रिड अप्रोच, दिस इज द अप्रोच आई हैव मेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि क्या स्टेटमेंट में जाएगा और क्या नहीं जाएगा। तो जिसको अनऑल्टर करने की बात की जा रही है, कि जिसको आपको चेंज नहीं करना, उसका वैल्यू एडजस्टमेंट होगा। समझ में आ गया? तो वो इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे चलो। मेंशन द नोन फैक्ट्स। व्हाट वाज द सैक्रिफाइस फॉर दिनेश? 1/24. For Ramesh also children 1/24, and for Suresh it was -2. ये तो लिख ही लीजिए झटपट। करेक्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे सब लोग, बस रिवैल्यूएशन के ऊपर लिख दीजिए रेफर प्रीवियस जर्नल एंट्रीज। On the credit side we have written buy fixed assets. What was the value children? 51,000. Debit side it is stock 8,000 and provision for doubtful debts how much? 3,000. To Dinesh's capital, to Ramesh's capital, to Suresh, or to Dinesh's capital, to Suresh's capital, to Ramesh's capital. In any order you can note it down children. For Dinesh it is 15, for Ramesh also 15, but for Suresh it is how much? 10,000. So यहाँ पे आपने deliberately values को change किया है। ओके और यहाँ पे एंट्री भी कर लेते हैं जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से आई है। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश टू दिनेश, या दिनेश रमेश जो मन लिख लीजिए पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Here children it is 7083 and here also it is 7084 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 14,167। नहीं समझ में वैल्यू कहां से? इसको आपने फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया? सो अब बच्चों जो भी हमारा एडजस्टमेंट हुआ है इट इज इन टर्म्स ऑफ गुडविल एंड रिजर्व। क्या हमने एसेट्स के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को कंसिडर किया? हैव वी कंसिडर्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट चिल्ड्रन? नो, क्योंकि क्वेश्चन हमको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। तो बातें सबको एकदम क्लियरली समझ में आ गई। जिसके बारे में चेंज बोलेंगे वो स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। एल्स जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा था डिटो सेम। गॉट इट? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ दिनेश चिल्ड्रन? 1 lakh. Ramesh 80,000. Suresh 70. What was revaluation profit बच्चों? 15,000 for Dinesh, 15 for Ramesh, and 10 for Suresh. How we can post this entry? That is also well understood, I suppose. To Dinesh's capital, to Ramesh's capital. In whose column children? 7083 and 7084. And credit side we'll be putting by Suresh's capital account in the column of Dinesh 7084
वैल्यू बच्चों जरा ठीक कर लीजिए यहाँ पे। डेबिट साइड में 2 दिनेश के सामने 4 लिखिएगा, इसमें 3 लिखिएगा। 7084 and 7083. Use common sense and answer, children. Have we adapted the practice in this question to distribute reserve? No. तो रिजर्व का आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। एक्चुअली वो मेरे दिमाग में हाइब्रिड अप्रोच थी पढ़ाने को, इसीलिए लास्ट टाइम क्वेश्चन करते समय मैंने स्किप कर दिया था। पहले से माइंड में प्रीसेट था कि उसको तो लेके चलेंगे नहीं, घुमाने साथ में उसको छोड़ के जाएंगे रोता हुआ। तो ये आएगा बच्चों 1,22,084। 95 ये आएगा 1,02,083 रुपए। इज माई कैलकुलेशन नॉट रॉन्ग? आई सपोज 95,000 plus 7083. 70 plus 10 is 80, children. Minus 7084 and 7083. 65,833. Balance brought down 122,084, 102,083 and 65,833. Understood how to prepare revaluation? So now children, balance sheet will have general reserve. अब आप बोलेंगे सर वो तो हमने बांट दिया, कहां बांटा? कोई आपने ऑफिशियल एंट्री की जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल? हैव वी डन एनी ऑफिशियल एंट्री चिल्ड्रन जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व? जो लोग सो रहे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। नो सर। नो, कोई भी जर्नल एंट्री आपने ऐसी पास नहीं की है। तो जनरल रिजर्व इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन योर बुक्स। द कैपिटल ऑफ डी is 1,22,084. The capital of R is 1,02,083 and the capital of S 65,833. Which two partners given us our loan, children? किसने किसने लोन दिया था? दिनेश एंड रमेश। कितना लोन था दिनेश का? वेरी गुड। और रमेश का? 30,000। बी क्विक, बी क्विक। What was cash balance, children? 40,000. Answer? Yes, sir. After cash balance we had bill receivable. How much? 50. 50,000. ठीक है। Then we had debtors. अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कल वाली अप्रोच में हमने डेटर्स की वैल्यू सेम लिखी थी 60, करेक्ट? बिकॉज वहां पे उनको चेंज नहीं करने को बोला गया था। आज ऐसा हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे होता नहीं कि अमेरिका ने पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हमारे ऊपर, वैसे ही। आफ्टर डेटर्स वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? स्टॉक वैल्यू इज 112 and then we have what children? Fixed assets. What's the value? 331. Anything else? चलिए दोनों साइड कर लेते हैं टोटल चिल्ड्रन एंड sundry creditors in the liabilities. चलिए क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं। What was creditors? 150. That's it. What's the total children? टोटल कर लीजिए। 590. नहीं, ये 590 जरूरी नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। 90,000 प्लस 50,000 57 प्लस 112 प्लस 331। चलिए कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है 590। अब आपकी क्वेरी होगी सर ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज पार्टनर्स के बीच में ही वही वैल्यूज डिवाइड की थी, अभी रिजर्व डिवाइड नहीं किया, उसको पूरा अलग से लिख दिया। समझ में आ गया? तो पहले दाल और चावल मिला के खाए गए थे, अब दाल अलग खाई गई और चावल अलग, और गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गई एक तरह? चलिए समझ गए बच्चों? समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? चलिए